Good morning, dear students. Continuing our last topic, that is transition series elements. Now, in that, we were talking about first transition series, that is from element scandium to zinc. In that, we have seen various periodic properties. In that, atomic radii we have discussed. Then, how elements vary with their oxidation states, why their oxidation states are different, how their atomic radii vary in the periodic table. All this we have seen, and what are the factors regarding that atomic radii and oxidation states are done in the last classes. Similarly, IP is also was the discussion topic. Now today we are going to see one of the important topic of transition series elements, that is their coloration property. Now coloration property means these transition elements are forming some compounds and which are colored in nature. Now what is the reason for that? Actually, in whole periodic table, transition elements have special characteristics because they are lying between S block and P block elements. That is, they have a transition from positive charged ion to negative charged ion, or positive electropositive character to electronegative character. So there is a kind of variation. Slow variation is from left to right. So because of that, this middle column of transition series, that is D block elements, are having special characteristics. So one of the characteristic is that the color of transition metal ions. Now why this color appears? Whenever we talk about any substance, okay, whenever we talk about any substance which is appear to be colored, when it will appear to be colored? When it is absorbed in the visible region. There are three regions are there, okay. In the light, light is having the characterization according to its wavelength, and as per that wavelength the visible region is divided, and according to that the invisible region, the color, one color is absorbed and other color is observed according to that wavelength of absorption. So in this visible region, whatever the substance appeared to be colored, it depends upon what light or what kind of wavelength it is absorbing in the visible region. So when a particular wavelength is removed from the visible spectrum, its complementary color is visualized, and this is called as complementary color. उसके exactly complement करने वाला color वो observe होता है. जो color absorb होता है वही color observe हमें नहीं दिखता, हमें ऑब्जर्व नहीं होता. ऑब्जर्व होना मतलब हमारे नेकेड आइज से जो ऑब्जर्व होगा, दैट विल बी called as the color which is observed here. So below also you can see a table here. So that table is showing the way various wavelength type absorption, color which is absorbed in that visible region. This is the visible region range, and what actually we observe, that colors are quite different from the absorbed colors. Okay, now these are the complementary colors. Okay, now most of the transition metal ions, they contain unpaired d electrons. So this unpaired d electrons plays a very important role in this colored compound formation. Now whatever amount of energy is required to promote one or more electron to going to a higher energy level within d subshell, that energy is quite low. Now the light radiations which are corresponding to small amount of energy are available within this range. Okay, now the ions will absorb certain wavelength of light. ये जो ions है d block d orbital के, वो ions क्या करेंगे, certain amount of light particular wavelength की absorb करेंगे, and then they will emit मतलब छोड़ना, they will emit or release the remainder, and that remainder जो वो light जो एनर्जी वो लिबरेट करेंगे या रिलीज़ करेंगे, वो एनर्जी रहेगी लाइट फॉर्म में, और वो जो लाइट है वो अपीयर होती है कलर फॉर्म में. ये जो पर्टिकुलर वेव आपको कलर्स दिख रहे हैं, उस फॉर्म में आपको वो लाइट दिखेगी, एमिटेड लाइट या एमिटेड एनर्जी. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द कलर्ड एब्जॉर्ब्ड and the colored
complementary color which is observed, that plays a very important role in formation of compounds or the colored compounds in transition elements. So one of the most important reason for the transition elements to form colored compound is that they have empty d orbitals, or they due to the availability of vacant d orbital. So that is playing an important role. Now again, in case of p block elements, what is happen, what is the reason? The energy required for the electronic transition is very high. Okay, and so they absorb in ultraviolet region. जो p block elements होते हैं वो ultraviolet region में absorb होते हैं, यानी कि UUV region, उसी वजह से वो कलरलेस दिखते हैं, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर दिखते हैं. तो अभी अगर आपको पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में पूछा जाए कि वाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलरलेस कंपाउंड्स and D block elements are forming colored compounds. So reason is, in case of S or P block elements, the transition or the energy which is required for the electronic transition or the movement of electron, that is electronic transition, ये जो ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी वो बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि आपको यूवी रीजन में ही अपीयर होगी, यूवी लेवल का रहता है, तो उस रीजन में वो लाइट एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, उस वजह से वहाँ के जो करस्पॉन्डिंग या आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसमें नहीं दिखता. सो दैट्स वाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली कलरलेस. बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एज द light is absorbed in this electronic transition is taking place in visible region, so that's why for a particular range there is a complementary color for it which is observed, so naturally they appear to be colored. So that can be another question for here, for give reason or for 2 mark or for 1 mark. The transition elements जो होते हैं या तो वो पूरी तरह से भरे होते हैं या तो पार्शली एम्प्टी होते हैं, तो वो भी एक रीज़न रहता है उनका. जो ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होगा, वो उनके डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी की वजह से होता है. जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही ट्रांजिशन ज़्यादा रहेगा, एंड दैट्स वाई दे विल शो अ कंट्रीब्यूशन टू द कलर. जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस टेबल the number of unpaired electrons, the metal ions, then outer configuration and the color. Now here you can see some special elements also which are in the ionic form now. Okay, like Sc, scandium का आयन है Sc3+, टिटानियम Ti4+, Cu+ एंड Zn2+. इनमें डी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन देखिए, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है तो आपको कोई भी कलर अपीयर नहीं होगा कंपाउंड में. सो द कंपाउंड फॉर्म विल बी कलरलेस. सो दैट कैन बी अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गिव रीजन फॉर 1 mark and for 1.5 mark. I have given a question in the pencil form also. I have written with pencil that why Sc3+ and Ti4+ are colorless. So that reasons are given. Or sometimes it is asked why these are green in color, why this is pink in color. So all these are reasons. That is the availability of D electrons. Okay, Sc3+ और Ti4+ में क्या हो रहा है? स्कैंडियम अगर आप देखो, स्कैंडियम मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 21. ओके, वी विल गो फॉर इट. आई विल सॉल्व वन सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. एटॉमिक नंबर है 21, उसको हम शॉर्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं, आर्गॉन के 18, फिर 3D और 4s में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा. ओके, जब हमें एक आयनिक फॉर्म बनाना, मतलब Sc स्कैंडियम में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इफ़ इट इज़ रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन तो उस पर आ जाएगा 3+ चार्ज, यानी कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो गए, तो यहाँ क्या बचा? Ar2 आर्गॉन बचा सिर्फ, है ना. तो स्कैंडियम में के अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, मीन्स 3D में बचे हैं 0 इलेक्ट्रॉन और 4s में बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन. हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. तो अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, पूरी तरह से नील है, तो वो हमेशा कलरलेस कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे.
सो सिमिलर फॉर द टिटेनियम ऑल्सो, टिटेनियम का जो आयन है वो भी उसी रीज़न की वजह से कलरलेस आयन, कलरलेस कंपाउंड्स बनाता है. सो दीज आर द रीजंस फॉर ऑल दिस कंपाउंड्स फॉर्मेशन. यहाँ आप देख सकते हो इस ब्लॉक में मैंगनीज के जो ऑक्साइड्स हैं अलग अलग फॉर्म में, उनके जो आयन्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिए हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से यहाँ कलर अपीयरेंस अलग अलग है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंड द Mn दिस कलर विल अपीयर डिफरेंट. जबकि मैंगनीज के ही ऑक्साइड्स हैं, बट हर कंडीशन में उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग अपीयर हो रहा है, उसकी वजह से कलर फॉर्मेशन या कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो आपको ऑब्जर्व होगा वो भी अलग रहेगा. सो दैट इज़ द कलर प्रॉपर्टी और कलरेशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Then the next property is magnetic properties. Now when we say magnetism or magnetic properties, it is related to the magnetic properties of that particular element. मतलब अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में वो एलिमेंट आते हैं, उसके आयंस आते हैं, तो हाउ दे बिहेव, उसी कारण से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट इज डायमैग्नेटिज्म, second is paramagnetism, and third is ferromagnetism. Okay, now what does it mean when we say many compounds of the d block elements exhibit magnetic properties? That is because of their unpaired electron. मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उसमें आपको एक कॉमन रीज़न जो देना है वो देना है कि उनके पास अवेलेबल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल. उनके जो डी ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम उनमें अवेलेबल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली दे आर शोइंग दिस एंड दिस प्रॉपर्टीज. दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दैट इज फर्स्ट सीरीज. ओके, अब हम बात करते हैं कि इन मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी में ये डायमैग्नेटिज्म क्या होता है. डाई मीन्स टू. ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में एज कम्पेयर टू द वैक्यूम. The intensity of magnetic field as compared to vacuum. So these substances are called as so these substances will be called as diamagnetic substances and the property will be called as diamagnetic property. ठीक है, अब हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पोल के बीच में अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में रख देते हैं. ओके, ये हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसे हमने मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख दिया. तो व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, इट इज़ रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल अवॉइड सच सब्सटेंस. एज अ रिजल्ट द सब्सटेंस विल अलाइन इटसेल्फ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट डज इट मीन, आप पिक्टोरियली ऐसे देख सकते हो कि ये हमारे मैग्नेट्स के 2 डायरेक्शन है, साउथ एंड नॉर्थ. देन ये जो पर्टिकुलर हमारा सब्सटेंस है जो डायमैग्नेटिक है, ओके, तो उसमें वो किस तरह से अलाइन करता है खुद को राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट्स. सो इस तरह से ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करता है. ओके, अब डायमैग्नेटिज्म कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे. सो डायमैग्नेटिज्म, डाई का मतलब होता है 2. सो इस तरह से आप याद रखें कि जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे वो क्या दिखाएंगे, डायमैग्नेटिज्म. सो मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन. सो they will nullify the effect, and in this contents or in this concept the magnetic moment will be 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिटली बिहेव करते हैं और वो एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. तो इस वजह से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, 0. सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. फिर सेकेंड सब्सटेंस आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. यहाँ आप देख सकते हो ये साउथ एंड नॉर्थ पोल है. ओके, देन व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर कीपिंग अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. तो कुछ सब्सटेंसेस जब मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करते हैं
वो अपने आप को पैरेलल में रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके पैरेलल में वो उनको खुद को अलाइन करते हैं। अगर राइट एंगल पे अलाइन कर रहे हैं तो डायमैग्नेटिक है, अगर पैरेलल में अलाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के तो वो कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। अब इन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उस प्रोसेस को बोलेंगे या फिनोमिना को कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये जो बिहेवियर है, एटलीस्ट इसके लिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। अगर किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इन एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे विल बी बिहेविंग एज परमानेंट मैग्नेट। तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी रहा तो भी वो क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू वो ज़ीरो नहीं होती है। सो दैट्स वाई सम मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ रहेगा। ओके, सो इस तरह के जो मैग्नेट्स हैं वो अलाइन रैंडमली होते हैं। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप उसे रखोगे तो वो अलाइन कैसे होते हैं, ऐसे रैंडम हो जाते हैं, उनके मूवमेंट ऐसे एक डायरेक्शन में नहीं रहते। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म। फिर तीसरा प्रकार आता है फेरोमैग्नेटिज्म। अब जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो पैरामैग्नेटिज्म का ही एक लिमिटिंग केस है, या फिर आप बोल सकते हो इसको एक्सट्रीम मैग्नेटिज्म। अब एक्सट्रीम या मैग्नेटिज्म ऐसी फिनोमिना है जिन सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो दिखाता है पैरामैग्नेटिज्म, अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो दिखाता है डायमैग्नेटिज्म, और जिसके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो दिखाता है फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनमें ऐसी कैसे रहेंगे, उनके डोमेन्स इस तरह से बिहेव करेंगे। सो दे विल हैव द पैरेलल स्पिन, इस तरह से उनका जो स्पिन रहेगा एज पर द मैग्नेटिक फील्ड वो पैरेलल रहेगा। और ये जो ग्रुप्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन्स। और जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी रहेगी तो ये डोमेन्स कैसे अलाइन करेंगे, रैंडमली। और जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो डोमेन फिर से डायरेक्शन ऑफ फील्ड में अलाइन कर जाएगी। सो इस तरह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ही लार्ज पॉजिटिव वैल्यू रहती है। इसमें जो वैल्यू रहती है वो बहुत ही छोटी रहती है, इसमें नील रहती है। सो इस वजह से ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है दैट कैन बी सीन इन 3 कैटेगरीज, डायमैग्नेटिज्म, paramagnetism and ferromagnetism. Okay, now in this 3D series elements, they are the most common parameter to determine whether they are having the magnetic movement or not. There is a formula for it to calculate it. Okay, so वो रहता है रिलेटेड उनके स्पिन रोटेशन से या स्पिन मोशन से और ऑर्बिटल मोशन से। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को या उन एलिमेंट्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट अपीयर्स टू गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें 2 प्रकार से अपने आप को अरेंज कर सकती है, एक स्पिन मोशन प्रेजेंट करके और दूसरा ऑर्बिटल मोशन। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला यहाँ जनरेट होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मूला सेज। ठीक है, तो म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट है, ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। एस यानी कि स्पिन मोशन, एल मीन्स ऑर्बिटल मोशन। तो इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 BM, यानी कि बोहर मैग्नेटॉन। इनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं यहाँ एट द बॉटम कि व्हाट द फॉर्मूला मीन्स। म्यू जो है वो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट है, एस जो है वो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, एल जो है रिजल्टेंट एजिमुथल क्वांटम नंबर है, BM जो उसी को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो एजिमुथल एंड ऑर्बिटल दे आर वन एंड द सेम। BM मीन्स बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे हमारे 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, उनके लिए जो ऑर्बिटल मोशन है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है, वो नील हो जाती है, उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो फॉर्मूले में और आपका नया फॉर्मूला इस तरह से बनाया जाएगा। यानी कि आपको स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट सॉल्व करना है तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए वी शुड नो दिस अगेन कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो हाफ होता है। स्पिन क्वांटम नंबर इज़ हाफ ना, उसकी वैल्यू हाफ होती है, आप 11th में भी पढ़ चुके हो।
तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ, उसकी वैल्यू तो वो हो जाएगा n/2। इसलिए आपको फॉर्मूले में यहाँ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब जब इसे सॉर्ट आउट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने के बाद यू विल गेट म्यू एस का फॉर्मूला रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। अब इसी से हमें मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे विच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट। सो आज के लिए इतना ही। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इवन दिस magnetic property is ending up with this. You can see the table here. यहाँ आप देख सकते हो कि इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड रहेगा उनकी वैल्यूज़। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके बेस पे उनका मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो आयंस जिनमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डायमैग्नेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द आयंस जो होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी वजह से वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। सिर्फ अगर आप आयरन, कोबाल्ट, निकेल की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से है, जो कि पैरेलली अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। And this is leads to the domains, strong domains, and this is showing that strong paramagnetism is called as ferromagnetism. So ये जो तीन एलिमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताए, कौन कौन से नाम बताए मैंने? आई टोल्ड यू आयरन। ठीक है, इनको याद रखना है आपको। आयरन है, कोबाल्ट है और निकेल। इनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका जो स्पिन है, इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं देयर स्पिन्स आर अलाइनिंग along the parallel to the external magnetic field. उसकी वजह से they have a strong domain and they show strong paramagnetism. Strong paramagnetism का meaning क्या है? Ferromagnetism. So in one way you can say the three elements are showing ferromagnetism, which are having no unpaired electron, they are showing diamagnetism, and which are having few or one or two unpaired electrons, they are showing paramagnetism. So that is the end of our magnetic properties related to 3D series, and in the next class we are going to see the remaining properties. Thank you and have a nice day.